جو بہت قدیم ترجمے ہیں ان کو ہی پڑھیے، تو آپ کو لگے گا کہ جو یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. جو عبداللہ یوسف علی نے لکھا ہے اردو میں وہی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے وہی، اور انہوں نے بریلی والوں نے تو نانو نفقہ لکھا ہے متا کو. قرآن یہ کہہ رہا ہے ارید اللہ عبید الرحمن، چاہے اسے اللہ کہو چاہے رحمان کہو، رحمان عربی کا لفظ نہیں ہے. یہ بات معلوم. تو میں نے کبھی انٹرپریٹیشن نہیں کیا، یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میں کوئی پروگریسو انٹرپریٹیشن، میں نے تو جو پرانے انٹرپریٹیشن وہ بھی نہیں، میں تو ترجمے کا استعمال کیا ہے. اور اس کے بعد علی میاں کا اس زمانے میں انفلوئنس تھا تو انہوں نے کیا کی حرکت کی کہ عبداللہ یوسف علی کے ٹرانسلیشن میں بدلاؤ کروایا. ویلکم بیک ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف نظریہ دا ویژن. عارف محمد خان، ایک نام جو صرف ایک سیاستداں کا نہیں بلکہ ایک ریفارمسٹ، ایک تھنکر کا ہے. ایک شخصیت جو ہمیشہ اپنے الگ انداز، الگ نظریے، پروگریسو سوچ اور انصاف کے جذبے کے لیے مشہور ہے. عارف محمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے لاء کی تعلیم حاصل کی. وہیں سے انہوں نے سماج اور سیاست کو ایک الگ نظر سے دیکھنا شروع کیا. تعلیم کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور 1977 میں ہی لوک دل کے پلیٹ فارم سے یو پی ودھان سبھا کے رکن بنے. یہ شروعات تھی. 1980 میں انہوں نے کانگریس جوائن کی، لیکن 1985 کا شاہ بانو کیس ان کے کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. طلاق اور مسلم عورتوں کے حقوق کے مسئلے پر انہوں نے کانگریس کے فیصلے کے خلاف اپنی آواز اٹھائی. اس وقت بھی مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا، لیکن عارف محمد خان نے صاف کہا کہ اسلام انصاف اور پروگریس کا دین ہے. اسی انسٹانس کی وجہ سے انہوں نے کانگریس چھوڑ دی. ان کا نظریہ ہمیشہ مختلف رہا. ڈفرینسز نہیں ہیں، آئیڈیالوجی والے بھی ڈفرینسز ہیں میرے ان کے، میں ان سے کہیں اتفاق نہیں کرتا. اگر میرے بڑے ہیں. عارف محمد خان کا ماننا ہے کہ اسلام ایک پروگریسو مذہب ہے جسے زمانے کے ساتھ ایوالو کرنا چاہیے. 2019 میں کیرلا کا گورنر بنایا گیا. وہاں ان کا فوکس صرف گورننس نہیں بلکہ ایک نئی سوچ اور ایک پروگریسو سماج بنانے کا رہا. انہیں بہار کا گورنر اپوائنٹ کیا گیا جو ان کی لیڈرشپ کا ایک نیا موڑ ہے. یہ صرف ایک لیڈر کی کہانی نہیں، ایک ایسے انسان کا سفر ہے جو ہر موڑ پر اپنے اصولوں پر قائم رہا. تو سنیے ایک دلچسپ اور بے مثال زندگی کا سفر. عارف محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے نظریے کے بارے میں ہماری بات چیت ہوگی. تو سیدھے ہم چلتے ہیں. سر آپ کا استقبال ہے. بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے سر آپ اپنا براٹ اپ اور کیسے آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ کے سفر میں وہ اہم لمحے جو آپ کے نظریے اور شناخت پر آپ کے اثر انداز ہوئے، وہاں سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ. آپ جیسا چاہیں. پر جی میرا بہت ہی کوئی غیر معمولی شروعات نہیں ہے. میں ایک معمولی کسان گھر میں پیدا ہوا. گاؤں میں اسکول بھی نہیں تھا تو اس لیے مجھے دلی بھیجا گیا. ہاسٹل میں جب میری 5.5 سال عمر تھی تو گاؤں میں تو اسکول بھی نہیں تھا. تو اچھے استاد ملے، اس میں کوئی شعبے کی بات نہیں ہے. بہت ہی خوش قسمت ہوں. اچھے استاد ملے. خاص طور سے اسکول میں جب جامعہ میں تھا، آپا جان ہماری وارڈن تھی، انہوں نے پہلے ہی مہینے سے مجھے تقریر وغیرہ کرانی شروع کری. وہاں فنکشن بہت ہوا کرتے تھے، پروگرام ہوتے تھے. ایون جو سب سے کم عمر کے بچے تھے ان کا بھی ہر مہینے ایک پروگرام ہوتا تھا اور اس میں وہ مجھ سے یقیناً انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا. یقیناً، اور ان کو میں سب سے بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اس کے بعد سفر چلتا اسکول میں آئے. اسکول کے بعد اسکول میں سے یونیورسٹی میں گئے. اس زمانے میں پری یونیورسٹی ہوتی تھی تو یونیورسٹی میں بھی بہت اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے
हमारे अंदर अगर कोई अल्लाह ने कोई सलाहियत दी थी तो उसको निखारने में, उसको बाहर लाने में, उस ट्रेन करने में हमें उस्तादों को क्रेडिट देते हैं बहुत ज्यादा। और मेरे वालिद को क्रेडिट ये है कि मेरी दादी इतनी नाराज थी मुझसे कि कई महीने तक सलाम का जवाब नहीं देती थी। मुझे हॉस्टल भेजे जाना था, लेकिन उस जमाने में उन्होंने, मैं अपनी फैमिली से पहला हूँ जिसे 5.5 साल की उम्र में हॉस्टल कि अच्छी तरबियत की वजह के लिए आपको शहर से बाहर भेजा उन्होंने इतनी कम उम्र में। मैं बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे ख्याल से ये बहुत अब पता नहीं मुझे, मैं कैसे कह सकता हूँ कि क्या हो जाए। मैंने तो आपको जो मुझे लगता है वो मैंने बता दिया। सर, आपका स्टूडेंट एक्टिविस्ट से गवर्नर ऑफ केरला का सफर तय किया आपने, तो उसमें कोई देखिए, स्टूडेंट एक्टिविस्ट में इस तरह नहीं था कि मैं पहले एक्टिविस्ट था और फिर मैं, मेरी पहचान शुरू से डिबेटर की थी, स्कॉलर डिबेटर। इस तरह तालीगांव में हमारे जमाने तक आप सेक्रेटरी का और प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते थे जब तक आपके पास गोल्ड मेडल ना हो। ओके। हाँ, तो अब मैं तो बीए फाइनल में सेक्रेटरी हो गया यूनियन का, तो अब डिग्री का गोल्ड मेडल तो हो नहीं सकता था मेरे पास, क्योंकि मैं तो सेक्रेटरी बीए फाइनल का था। तो मैंने, चूंकि मेरे दिल में था कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा मैंने डिबेट का गोल्ड मेडल कंपटीशन होता है और ऐसे राइटिंग का होता है, तो मैंने सेकंड ईयर में ऐसे राइटिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया। ओके। बीए, जब मैं बीए कॉन्टेस्ट किया फिर बीए फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने ऐसे राइटिंग का गोल्ड मेडल जीत लिया। और फिर मैं मतलब रिवायती तौर पर, कोई कानून नहीं है, रिवायती तौर पर इंटाइटल। तो मेरी पहचान ये नहीं थी कि मैं एक्टिविस्ट ज्यादा हूँ, मेरी पहचान थी कि मैं डिबेटर हूँ। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड डिबेटर के लिए अलीगढ़ वालों का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब मुझे बीए फर्स्ट ईयर में पहली डिबेट में फर्स्ट प्राइज मिला और गोल्ड मेडल वाली डिबेट में मिला, तो हमारे प्रोफेसर हसन साहब थे, मैं सोचा वो मुझे शाबाशी देंगे, उन्होंने मुझे डांट लगाई। जब चाय पीने के लिए गए तो डांट लगाई और कहा कि साहबजादे बोलने चले आए या कुछ पढ़ते लिखते भी हो? और बोलने के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद अपना पता दिया और कहा कि कोई डिबेट तैयार करनी हो, स्पीच तैयार करनी हो तो आ जाया करो। और इस कदर शफकत से उन्होंने हमारी मदद की। लेकिन जब मैं मिनिस्टर होकर पहुंचा उनको सलाम करने, तो उन्होंने सबके सामने कहा कि ये पहले ही साल गोल्ड मेडल जीतता डिबेट में, मैंने जीतने नहीं दिया इसको। मैंने कहा कि ये कम उम्र लड़का है, खराब हो जाएगा अगर गोल्ड मेडल। इसको गोल्ड मेडल के बाद आप डिबेट में हिस्सा नहीं ले सकते। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो, यूनिवर्सिटी कलर हो गया। तो बोले इसे पहले दिन फर्स्ट प्राइज मिल गया। मैंने जो 5 जज और थे उनको मैंने कह दिया कि अब इसको फर्स्ट प्राइज देना ही नहीं है, चाहे जितना अच्छा बोले। अब ये क्या बात है, क्या मैं कहता हूँ कि उनका एहसान कभी उनका और ये तो कोई आपकी माँ, आपका बाप आपके बारे में इस तरह सोचता है जो आगे था। भाई उस वक्त तो कम उम्री में शौक था कि गोल्ड मेडल मिल जाए किसी चीज। उन्होंने कहा इसको गोल्ड मेडल मिलता, मैंने नहीं मिलने दिया। सेकेंड ईयर में फिर आपको मिला? नहीं, वो ऐसे राइटिंग में उसी राइटिंग में पहले बार मिल गया। डिबेट में आपको ऐसे राइटिंग में तो किसी को पता होता नहीं है कि किसने लिखा है, वहां तो नाम होता नहीं। अच्छा, कोड होता है। तो उसमें मिल गया। और फर्स्ट डिबेट में फर्स्ट प्राइज लिया मैंने, और मुझे आज तक उसका टॉपिक भी याद है। ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मुसावात मर्द जन का नजरिया मंशाए फितरत के ऐन मुताबिक। हजारों डिबेट में हिस्सा लिया होगा, कोई याद नहीं, लेकिन वो पहला है वो याद। तो सर, ये आपके फैमिली बैकग्राउंड ने आपके सोशियो पॉलिटिकल और रिलीजियस आउटलुक को कुछ शेप अप किया? नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में इतना शेप अप किया कि वो चाहते थे कि मैं तालीम हासिल करूं, लेकिन मेरी फैमिली में आप अगर मिलते उन लोगों से तो आपको लगता है कि बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन
وہ پڑھائی لکھائی ساری گھر پہ جو ٹیچر ہوتے تھے وہ کراتے تھے. میں پہلا ہوں یونیورسٹی جانے والا, ورنہ تو وہ بلند شہر میں زمینداروں کا قائم کیا ہوا وہ تھا, اسکول تھا, یہ سب وہاں جاتے تھے اور ہائی اسکول تک ہر سال پاس ہوتے تھے, اور ہائی اسکول 9ویں تک ہر سال پاس ہوتے تھے, اور 10ویں میں جس سال شادی ہونی ہوتی تھی اس سال لوٹ کے آ جاتے تھے. تو میں پہلا ہوں, تو اب میں پتہ نہیں, میں نہیں جانتا کہ کا, لیکن میرے تعلق سے میرا خاندان انہوں نے ہر چیز وہ میں بہتر تعلیم حاصل کریں. تو سر آپ اسلام کے پروگریسو انٹرپریٹیشن کے ایڈوکیٹ رہے ہیں ہمیشہ سے, تو کیا آپ کی سوچ میں انٹلیکچوئل فاؤنڈیشن پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتہ نہیں کیا مطلب ہے پروگریسو انٹرپریٹیشن سے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی مت کریے, جو بہت قدیم ترجمے ہیں ان کو ہی پڑھیے. آپ کو لگے گا کہ جو یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. میں انٹرپریٹ نہیں کرتا, میں کون ہوں انٹرپریٹ کرنے والا؟ عبداللہ یوسف علی مثال کے طور پہ انگریزی میں جو عبداللہ یوسف علی نے لکھا ہے, اردو میں وہی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے, وہی, اور انہوں نے بریلی والوں نے تو نانو نفقہ لکھا ہے متا کو. اور جب میں نے پڑھا بریلوی مولویوں کے سامنے, جب آئے ملنے کہا انہوں نے لکھا ہے کس سینس میں لکھا. بھائی اب اگر آپ کوئی بھی چیز نہیں ماننے کو تیار ہیں تو پھر کوئی کیا علاج اس بات کا. میں کہتا ہوں آپ ولی المطلقات, وہیں سے تو آپ کہہ رہے ہیں میں پروگریسو انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. ایک معمولی عربی جاننے والے سے پوچھ لیجیے مطلب کیا ہے آپ کا, ولی انٹرپریٹیشن کی ضرورت کیا ہے. ولی المطلقات اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے بھی متاع بالمعروف, معروف کہتی ریزنیبل اینڈ فیئر, جو ماڈرن لا کا لفظ ہے. متاع کا مطلب کیا ہوا؟ مال و دولت. ان کے لیے بھی یہ ہے حقاً علی للمتقین, یہ حق ہے ان کے اوپر جو متقی ہیں. اب پرسنل لا بورڈ کا انٹرپریٹیشن تو وہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا یہ متقین کے لیے ہے, عام مسلمانوں کے لیے نہیں. افریقہ پوری کتاب ہی متقین کے لیے, الف لام میم کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ساری ہدایت بھی متقین کے لیے ہے. پھر دوسری بات کیا ہے, حق کا کیا مطلب ہے؟ حق نہیں, حقاً علی المتقین ان کی ڈیوٹی ہے, ان کی ڈیوٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو اچھے اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے. اب یہ تو کہہ نہیں سکتے, ریکمینڈ کیا گیا ہے جو بھی قرآن کے احکام ہے اس کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اچھے اخلاق کے قانون نہیں بن سکتا. ارے بھائی قرآن کوئی قانون کی کتاب ہے, قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, حکمت کی کتاب ہے. حکمت کی روشنی میں آپ قانون بناتے ہیں سماج کی ضرورت کے مطابق. تو میں نے کبھی انٹرپریٹیشن نہیں کیا, یہ کہنا ہی غلط ہے کہ میں کوئی پروگریسو انٹرپریٹیشن, میں نے تو جو پرانے انٹرپریٹیشن وہ بھی نہیں, میں تو ترجمے کا استعمال کیا ہے. اب آپ دیکھیے ان پہ آپ لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریر کی. اب عبداللہ یوسف علی ٹرانسلیٹر ہیں, انہوں نے مینٹیننس کیا ہے ترجمہ بتا کا اس آیت میں. میں نے آپ کو بتا دیا, ان لوگوں نے متا لکھا ہے, اشرف علی تھانوی صاحب نے, احمد رضا خان صاحب نے اپنے قرآن میں, جو نعیم مراد آبادی صاحب ہیں انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے, انہوں نے نانو نفقہ لکھا ہے. اور اس کے بعد علی میاں کا اس زمانے میں انفلوئنس تھا, تو انہوں نے کیا کی حرکت کی کہ عبداللہ یوسف علی کے ٹرانسلیشن میں بدلاؤ کروایا, اور پھر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, اور پھر ایک ایڈیشن کے بعد پھر وہی پلٹ کے ڈالا گیا. بھائی عبداللہ یوسف علی اب موجود نہیں, آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو ڈس ایگری کریے, لیکن آپ کو تحریف کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ تو یہ کوئی عالم تھوڑی ہے, یہ تو اللہ میاں ہے. وہ تو فیکٹ ہے. ایک ایڈیشن میں وہ کارخانے میں چینج کروانے میں کامیاب ہو گئے, اور پھر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے اوپر. پھر جو اس کے بعد ایڈیشن آیا اس میں پھر جو عبداللہ یوسف علی کا ٹرانسلیشن تھا اس کو ریسٹور کیا گیا. یہ تو کمال کے لوگ ہیں صاحب, تقریر کرتے ہیں علی میاں,
पढ़ लीजिए किताब मुशीरुल हक साहब की, लखनऊ में तकरीर करते हैं, कहते हैं कि इस्लाम के अंदर ये इस्तिताअत है कि इस्लाम बदलते हुए वक्त के तकाज़ों को पूरा कर सके। और 3 दिन बाद नदवे के अंदर तकरीर करते हैं, 3 दिन के फर्क से दोनों तकरीरें कोट की हैं मुशीरुल हक साहब, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन मॉडर्न इंडिया में, दोनों तकरीरें कोट की। दूसरी तकरीर में कहते हैं 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद कहते हैं हम नदवे की लाइब्रेरी में ऐसी किताबें रखने की इजाजत नहीं दे सकते जिनसे हमारे तलबा का ईमान और अकीदा मुतज़लज़ल हो जाए। अरे भाई मुझे जवाब हाई करेंगे। अच्छा, आप पूरी तारीख देख लीजिए, इस्लाम के ऊपर जो अटैक हुए हैं उसका जवाब किसी रिवायती मौलाना ने दिया? वो तो उस जुबान को ही नहीं जानता जिसमें अटैक होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब नॉन ट्रेडिशनल। फिर दूसरी बात उनकी एक और है, उनका तरीका तालीम जो है वो है उस्ताद बैठेगा किताब लेके, हर बच्चे के हाथ में वही किताब होगी, डिस्कशन के लिए और क्वेश्चन करने के लिए कोई जगह नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सवाल इल्म खजाना है और सवाल उसकी चाबी है। सवाल होना और इनके यहाँ सवाल करने की इजाजत नहीं थी। इनके यहाँ तो आप ध्यान करिए, अब मुझे नहीं पता, अभी भी हैं वो लोग, लेकिन बीच में जरा कम हो गए थे, जो कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की इजाजत मना करते थे। बिल्कुल, ये अब तो बहुत कम कहते थे ईमान खराब हो जाएगा, में याद है कि ईमान खराब हो जाएगा। मैंने जब कुरान का थोड़ा तालिब इल्म की हैसियत से मुताला ज्यादा किया तो मैंने क्या, मौलवी सही कह रहे हैं, मौलवी जो ईमान बताता है उससे बिल्कुल एकदम आदमी अलग हो जाएगा। उलमाए किराम को बुरा भला कहने की बजाय अपने गरीबानों में झांकिए। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने डॉक्टरी पढ़ी, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, आपने MBA किया, आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर MSc किया, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं है। इस्लाम में न पापाइयत है न ब्राह्मणियत है। मौलवी के दीन से वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। मौलाना आजाद ने 1953 या 56 में मदरसा बोर्ड की मीटिंग लखनऊ सेक्रेटरी असेंबली, ये जो असेंबली सेक्रेटेरिएट है वहां पे हुई, उसमें सारे उलमा मौजूद थे और उन्होंने तकरीर की। उन्होंने क्या, भैया आप लोगों को पता नहीं क्यों आप नहीं समझने को तैयार हैं कि ये जो तरीक़ा तालीम आपने अपनाया है ये इस्लामी तरीका, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। ये किताब हाथ में लेके किताब मतलब रटाने का काम जो है। उन्होंने कहा कि दारुल हिकमा आज जो यूरोप में और मॉडर्न यूनिवर्सिटीज में जो तरीक़ा तालीम है, जहां प्रोफेसर आके लेक्चर देता है उसको अरबी में इमला कहते हैं। इमला डिक्टेशन आपका तर्जुमा है उर्दू में। अरबी में इमला का मतलब है कि जहां पर एक आदमी तकरीर करे और फिर आपको उससे सवाल पूछने की इजाजत हो। अच्छा, ओके। उस सिस्टम कहा, ये तरीक़ा तालीम दुनिया में प्लेटो के बाद पहली बार दारुल हिकमा में ये तरीक़ा अपनाया गया था। और यूरोप तो उस वक्त डार्कनेस में था, यूरोप में तो यूनिवर्सिटियां ही नहीं थी। यूरोपियंस ने इसी तरीके को अपनाया और चूंकि तुम्हें हिस्ट्री का इल्म नहीं है, तारीख का इल्म नहीं है, लिहाजा तुम ये समझते हो कि ये मगरिबी तरीका तालीम, मगरिब ने तो ये दारुल हिकमा से लिखा है। क्या बात। अच्छा, आप दूसरा और एक देखिए, किसी मदरसे में, किसी इस्लामी तालीमी इदारे में, इस्लामी में कह रहा हूं जहां वो कहते हैं दीन की तालीम दी जाती, तारीख नहीं पढ़ाई जाती। अलीगढ़ जामिया ये तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी है, तारीख नहीं पढ़ाई जाती। तो भैया इंसान में और जानवर में एक ही फर्क है, तारीखी शऊर का, उसके अलावा तो कोई फर्क है ही नहीं। ये कहा भी जाता है ना कि ज़माने जाहिलियत, मतलब जब कुरान नहीं आया था तो ज़माना जाहिलियत था, तो आया है तो आप इल्म वाले हो जाइए, कुरान को पढ़िए। वो तो और आगे आई है जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नहीं कहा कि चांद की कोई हुर्मत है जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और प्रोफेसर सिबही महमसानी ने शरीयत फ़लसफ़ा इस्लाम में उसको कोट किया है। उन्होंने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद के हिसाब से क्यों रखा, रमज़ान या
ईद या जी। महीनों की गिनती, तो उन्होंने, हुजूर ने फरमाया, कौम ना पढ़ना जानती है और ना लिखना जानती, जी इसलिए चांद का तरीका रखा है। अब आप ध्यान करिए, हमारे गांवों में मेरी नानी, कोई तालीम नहीं थी उनको, लेकिन चांद देख के तारीख बता देती थी कि इस महीने की ये तारीख है। हाँ बिल्कुल, वो तो वो बेपढ़े लिखे लोग, लेकिन इस्लाम आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर था कि आप इल्म तालीम हासिल की, इल्म हासिल कीजिए। हर अगर एरिया में- आप इल्म हासिल करने के बाद भी वहीं रहना चाहते हैं तो कौन, उस पर कोई रोक नहीं है, आप रोके रहिए। तो इससे एक सवाल निकलता है कि आप सर कुरान और इस्लाम के यूनिवर्सल प्रिंसिपल को कैसे मॉडर्न मैंने दुनिया का प्रोग्रेसिव तो प्रोग्रेसिव छोड़िए, की बात मैंने नहीं कर रहा हूं। इंटरप्रिटेशन कभी किया ही किया नहीं। ही नहीं आपने, मैंने तो जो तर्जुमे पुराने जो लोगों ने principle किए है, हैं सिर्फ उसको कोट किया। उससे जो एक उसूल निकलता है, निकल के सामने आता है नहीं, मैं कुरान का। उसूल मैंने नहीं निकाले, जी मैंने तो सीधे सीधे भाई उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप और तलाकशुदा औरत के लिए भी जी मता है, मैं कहता हूं, मैं अरबी का ही लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मता है। तो मता का क्या मतलब हुआ? और ये हक है उनके ऊपर जो खुदा का, जिनको ऐसा, मुत्तकी का मतलब खुदा से डरना नहीं है, मुत्तकी का मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस। सही सही माने। जिस आदमी को ये एहसास है कि चाहे मैं पब्लिक में हूं, चाहे मैं अकेला हूं, मैं जो भी काम कर रहा हूं अल्लाह देख रहे हैं उसको। तकवे का मतलब ये तकवा है। का मतलब वही है, तकवे का मतलब दाढ़ी और ऊंचा पाजामा पहनना नहीं है। बिल्कुल। तो आप मतलब दुनिया के मसाइल का हल इसमें देखते हैं या नहीं? दुनिया के मसाइल का हल, अरे यहाँ पढ़ने ही नहीं देते, उसका तर्जुमा नहीं पढ़ने देते, आप कह रहे हैं दुनिया के मसाइल का हल। जिस चीज को आप समझते ही नहीं, आप उसको कहाँ अप्लाई कहाँ apply करेंगे? कर सिर्फ सकते? जुबान दराजी करने से तो बिल्कुल। नहीं होता कुछ। बिल्कुल सही बात है, हल है, लेकिन पुराने समझना हदीस में जरूरी है। साफ आ रहा है, इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम ला तदुर्रूहु शैअन। अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला करेंगे, करेंगे। और जिस जगह तुम बैठे हुए हो वहां किसी और को लाके बिठा दिया जाएगा, और अल्लाह के इस अमल पर तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। जी आपके सामने पूरी हमारी तो प्रॉब्लम ये, कुरान पढ़ना तो छोड़िए, हम तो तारीख भी नहीं पढ़ते कि हमें ये पता हो कि हम इसको रिलेट कर सकें उसके साथ। तो ये मजहबी जो ना इत्तफाकी है, इत्तफाक को डायलॉग से सॉल्व किया जा सकता है। इत्तफाक हमेशा इख्तलाफ को बर्दाश्त करके कायम होता है, कभी इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इख्तलाफ खत्म हो जाए। क्यों, कैसे हो जाएगा खत्म? नजरिया सबका अपना अपना है, वो तो ठीक है। हर इंसान को अल्लाह ने मुनफरिद बनाया। जी क्या आपके अंदर ये सकत है कि आप, जो आदमी आपसे मुख्तलिफ नजरिया रखता है, उसको बर्दाश्त कर आप उसको बर्दाश्त कर सकें और उसकी इज्जत कर सकें? ये बुनियादी जरूरत है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। छोड़ दीजिए उसको, मुहज्जब जिंदगी जीने के लिए इसकी जरूरत है। अच्छा सर, इसी में एक सवाल है कि मजहब और स्पिरिचुअलिटी, इसमें कैसे अलग कर सकते हैं इसको, या साथ सही चीज है, एक ही चीज है? ये तो अलग तो इस तरह है कि स्पिरिचुअलिटी, ये स्पिरिचुअलिटी ये है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस कुदसी है जी, ऑर्डिनरी हदीस नहीं है। तो खल्लिकू भी अखलाकिल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपनाओ। अल्लाह के अखलाक क्या है? अल्लाह उसको भी रोजी देता है जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह उसको भी रोजी देता है जो इनकार करता है। सही बात। अल्लाह का सूरज उसको भी एनर्जी देता है जो अल्लाह को मानता है, जो इनकार करता है उसको भी देता है। और इसमें एक हदीस, इसमें एक रिवायत सुनाई जो मौजूद है कि सारी हदीस की किताब, कि हजरत इब्राहिम अकेले खाना नहीं खा पाते थे। जी जी, वो मशहूर रिवायत है ये। को उन्हें कोई साथ में चाहिए था। एक दिन कोई नहीं था, एक आदमी को पकड़ के लाए। अब वो तो रसूल थे अल्लाह के, तो उन्होंने कुछ अल्लाह की बात की, उसने कहा मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता। तो ये बिल्कुल एकदम सख्ते में आ गए, और खाना भी नहीं आया काफी देर तक जी, और ये कुछ बोले ही ना फिर कि मैं कैसे आदमी को पकड़ लाया, और वो उठ के चला गया। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम,
क्या उम्र रही होगी इस आदमी की? कहा 65-70 साल। कहा जिस दिन से होश संभाला है हर दिन हमारा इनकार करता है और हम हर दिन इसे खाना देते हैं, तुम एक वक्त खाना नहीं खिला पाए। जिस दिन आप अपने आप को दूसरे की जगह रखकर और उस नजरिए से चीजों को देखेंगे जब आपस के मामलात में, वो स्पिरिचुअलिटी है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? बिल्कुल अपनी राय को इम्पोज मत कीजिए। वलौ शाह रब्बु का लामना मन फिल अर्दे कुल्लुहुम जमिया, अगर अल्लाह चाहते तो सब एक ही ईमान वाले होते, तो अल्लाह ने तो चाहा नहीं। तबलीगी जमात वाले चाहते हैं कि सब एक तरह के हो जाए, अल्लाह ने तो अल्लाह तो साफ साफ कह रहा है ना, वलौ शाह रब्बु का लामना मन फिल अर्दे कुल्लुहुम जमिया, सारे लोग जो है सब एक ईमान वाले हो जाते अगर हम चाहते। जी। अफा अंत, और ये आयत आपको और मेरे लिए नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस है। अफा अंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन, तो क्या आप जबर करेंगे इनके ऊपर कि ये ईमान ले आए? हाँ, सूरह यूनुस 99 पढ़ लीजिए अभी। और फिर अगली आयत में कहा वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह की इजाजत नहीं होगी कोई ईमान नहीं ला सकता। जी। अब ये एक अकल की बात बता दी आपको। और उसके बाद क्या कहा? वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला यअक़िलून, लेकिन जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सबको अपने जैसा बनाना चाहते, उनके ऊपर लानत। कुरान लानत भेज रहा है भाई। इंप्लीकेशन क्या होगी? और इंप्लीकेशन क्या होगी? वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना, ये अरबी का प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि अल्लाह गंदगी फेंकते हैं। तो अफसोस है, तुफ है उन पे जो अपनी, तुम्हें अकल की बात बता दी, अब अगर अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो फिर तुफ है तुम्हारे ऊपर। ये इस मरहले में आखिरी सवाल एक ये वाला है, मतलब अभी हम आपसे एजुकेशन के बारे में, सियासी बारे में बात करेंगे कि जो सेकुलर माशरे में किरदार कैसा होना चाहिए। बुनियादी सवाल ये है जी कि आप सेकुलरिज्म को मानते हैं? तब मैं जवाब दूं। सेकुलरिज्म को मानते हैं? किसी मुस्लिम मुल्क में सेकुलरिज्म को नहीं माना जाता, कुफ्र कहा जाता है। और अरबी में उसका तर्जुमा किया गया है लादीन। हाँ हाँ, मैं लेबनान में कई, इन्होंने अरब स्प्रिंग के बाद मीटिंगें की तो 3 की उन्होंने, उसके बाद तो लेबनान में प्रॉब्लम हो गई, तीनों में मुझे बुलाया। और मैंने जो तकरीर की अपने ग्रुप में, तो चेयरमैन ने इंसिस्ट किया कि ये तकरीर आप प्लेनरी सेशन में करिए। मैंने उनसे कहा भैया हिंदुस्तान बड़ा रिलीजियस मुल्क है, लेकिन पॉलिटिकल क्रीड सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म पॉलिटिकल तौर पे उसका मतलब क्या है कि हम दूसरे मजाहिब का भी एहतराम करेंगे। तो आपके यहां तो एहतराम के लिए कोई दर्जा है ही नहीं, कोई जगह ही नहीं। मतलब सेकुलर माशरे में कैसा किरदार होना चाहिए भाई? अब आप हिंदुस्तान कहिए जी, इससे कि आपके मुल्कों में कहां जहां मुस्लिम मेजोरिटी है, एक मुल्क का नाम बताइए जो सेकुलर है, बताइए ना। इंडोनेशिया। बस इंडोनेशिया और मलेशिया जी। और वो क्यों? कि वहां का कल्चर हिंदू कल्चर है, बहुत जमाने का कल्चर है। वहां पे खुशकिस्मती से कभी कोई मुसलमान बादशाह नहीं पहुंचा वहां। और आज भी कल्चर 98% मुस्लिम आबादी है और उनकी करेंसी पे गणेश जी जी। उनके यहां गली गली में रामायण होती है। उनकी एयरलाइन का नाम गरुड़ है। उनके प्रेसिडेंट, एक ऐसे प्रेसिडेंट का वाकया बता रहा हूं आपको जिनके बारे में यह था कि ये सब थोड़े रेडिकल है। तो मैं, हमारे एम्बेसडर ने सुना, वहां राष्ट्रपति भवन के सामने कृष्ण अर्जुन संवाद का इतना बड़ा स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगी हुई है जितनी बड़ी विलिंगडन क्रेसेंट पर जी डांडी मार्च की, उससे भी बड़ी है। तो उनका कल्चर हिंदू, उन्होंने अरब कल्चर नहीं अपनाया। आपके नजदीक उन्होंने रिलीजन में, या ईरानी है मिसाल के तौर पे, सेकुलर नहीं है, ईरानियों ने रिलीजन में और कल्चर में फर्क किया है। जी, मैं इसी पर ये आने वाला सिर्फ था। हिंदुस्तान का मसला है कि हमारे लिए रिलीजन, अरब कल्चर भी रिलीजन है,
हम अच्छे खासे खुदा हाफिज कहते थे, अल्लाह हाफिज कहना शुरू कर दी। अल्लाह को खुदा के नाम से नहीं पुकारा जा सकता। अरे कुरान कह रहा है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, जितने खूबसूरत नाम है सब अल्लाह के हैं, सब अल्लाह के। कुरान ये कह रहा है जी, उलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, चाहे उसे अल्लाह कहो चाहे रहमान कहो। रहमान अरबी का लफ्ज नहीं है, ये बात मालूम है? हाँ नहीं, इब्रानी का, इब्रानी का है। जब सुलह हुदैबिया लिखी जा रही थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा शुरू करो और लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो कुरैश के नुमाइंदे ने हाथ पकड़ लिया। उसने कहा हम किसी रहमान को नहीं जानते जी, वो लिखना पड़ेगा जो कुरैश का तरीका है, बिस्मिही नहीं, बिस्मिही। हुजूर ने कहा काट दो। आज तो आप डंडा लेके खड़े हो जाएंगे अगर कोई आपसे ये मुतालबा करे और आप उससे एग्री कर जाएं तो आप तो सर फोड़ देंगे उसका। तो उस पर आयत आई उलिदुल्लाह अबिदुर रहमान वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, चाहे उसे अल्लाह कहो चाहे रहमान कहो, जितने खूबसूरत नाम सब अल्लाह। इसका मतलब है कि रिलीजन और ट्रेडिशन में अगर फर्क कर दिया जाए, रिलीजन में अलग समझा जाए, कल्चर का ताल्लुक ज्योग्राफी से, बिल्कुल ज्योग्राफिकल एरिया से होता है उसका। आपका कश्मीर का कल्चर और केरला का कल्चर एक है। कश्मीर में ठंड पड़ती है, केरला में गर्मी पड़ती है, तो कैसे एक हो सकता है? खाना पीना एक नहीं हो सकता। ये कहना मुस्लिम तहजीब मुस्लिम तहजीब कैसे हो सकती है? कश्मीरी हो सकती है, यूपी की हो सकती है, केरला की हो सकती है। सर आपसे बातें करके अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग और फिर हम लोग बात शुरू करते हैं। चलिए, थैंक यू।